हमने last time we started off with this with the introduction of critical reflection. तो हम आज इसी को जारी रखते हुए जी we will be looking at a few things. आज हम जो बात करेंगे that is about kinds of assumptions. हमारे पास जो काइंड्स हैं, मैंने लास्ट टाइम आपसे गुजारिश की थी, एक प्रैक्टिस भी थोड़ी सी की थी हमने कि अजम्पशंस को का मतलब क्या है। अजम्पशंस के बारे में हम आम तौर पर ये नहीं समझते कि अजम्पशंस हैं। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि these are sometimes our beliefs about things, and because they are different from religious beliefs, and they're really not beliefs. We don't take them as beliefs. That is why we call them assumptions. There are basically three kinds of assumptions. Number one, we will talk about causal assumptions. The causal assumptions जो होती हैं, they express a cause and effect relationship. आप अगर किसी चीज के बारे में, यानी ठंडा पानी पीने से जुकाम हो जाता है, दिस इज अ कॉजल assumption. If A happens, then B is likely, or B will happen. This is the causal assumption. Uh, if children are treated with respect, they learn to be respectful. This is the causal assumption. If A, then B. तो कॉजल assumptions जो हैं, इनके अंदर जो एक बड़ी खूबी होती है जिसको हम जरूरी है हाईलाइट करना, वो ये कि ये प्रिडिक्टिव होती हैं, यानी दे कैन बी प्रिडिक्टिव एज वेल. So if you're thinking that if A results in B, then it means that if you start doing A, you will have B, right? So ये assumptions हैं. अब इसको अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आपको ये फिर ये टर्म्स वगैरह याद भी होनी शुरू हो जाएंगी सारी. लेकिन causal assumption को बस इतना याद रखिए कि it expresses a cause and effect relationship between two variables. The other one, the next one, the second one is prescriptive assumptions. Prescriptive assumptions are those where we actually talk about a desirable form of behavior, a desirable setup, a good class should, a good class needs to. इसमें जो निशानी होगी इसकी सबसे बड़ी, वो ये है कि while expressing a prescriptive assumption, you will generally, we use the word should or need to or need, or things like that. For instance, a good teacher uh, should have strict control over the class. A good student should pay attention. You know, a good relationship should fill in the blanks. This is a prescriptive assumption. Whenever you will use the word should or need to, so this will be a prescriptive assumption. For instance, a good professional uh, should uh, should be aware of cultural diversity. For instance, ये जो है ये this will be a good example of a prescriptive assumption. इसी तरह से in a relationship, uh, both partners should be able to express themselves fully. They should feel belonged. They should uh, not have to feel, they should not have to fit in. We'll feel that they are fitting in, but they should feel totally belonged. These would be prescriptive assumptions. दोस्ती अच्छी कैसी होती है, प्रोफेशनल अच्छा कैसा होता है, ये सारी चीजें जो. और जो तीसरी assumption है, which is probably, if I may say so, that can be a little more difficult to define and to find in a write-up. Paradigmatic assumptions basically tell you about how your deeply held assumptions, they are your deeply held assumptions that frame the whole way you look at a certain phenomenon. For instance, and they would be, इनकी alamat ये होती है that they can be expressed with the word is or are. For instance, children are, fill in the blanks. ये paradigmatic assumption है. Parents are,
capitalism is, whatever your idea is overall. And because within that idea there will be many factors, because ये एक broader idea होता है. Man is a social animal. This is a paradigmatic assumption. Man is a socio-moral animal. uh, Paradigmatic assumption. uh, इसकी और क्या मिसालें हो सकती है, इसको सोचिएगा. मिसाल के तौर पर चिल्ड्रन आर क्यूरियस बाय नेचर. दिस इज अ पैराडाइमेटिक assumption. ये आपका पैराडाइम बयान कर रही है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट बयान कर रही है, आपका पर्सपेक्टिव बयान कर रही है अबाउट, लेट्स से, चिल्ड्रन, मैन, पीपल, ग्रुप्स, इकोनॉमी, मनी, ऑल दीज थिंग्स. इसके बारे में आपका ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये आम तौर पर इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसको डिसाइफर करना पड़ता है, इसको इन्फर करना पड़ता है आमतौर पे. ये आमतौर पे बयान नहीं होता जी. ना हम बयान करते हैं, ना दूसरे बयान करते हैं. फॉर इंस्टेंस, इस पर हम गुफ्तगू करते रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वी कैन गेट इनटू अ डिस्कशन अबाउट what is a good way of parenting, but we might never use, an explanation, or we might never give an explanation of what my paradigm is. Last time आपको याद होगा uh, uh, that I mentioned that my idea of education is basically constructivist. Now, this is a paradigmatic, uh, thing that I'm talking about. When you say, for instance, I like to teach, I like people to learn through experience, this is a paradigm. Within the constructivist approach, this is a paradigm, another paradigm. So, इसके नतीजे में, अगर let's say, if you like to use experiential approach to learning, what will happen? You will probably give students experiences about various things. You will probably make them go through projects and then infer from those projects, to draw conclusions from those projects. This will be your method. So just think about it. Paradigmatic assumptions are the overall assumptions within which lie the prescriptive assumptions, and within which lie the causal assumptions. Causal assumptions are the easiest to find because they are clearly expressing a cause and effect relationship. Prescriptive assumptions are quite easy again because they are expressed generally. मसलन ये कहा जाएगा अगर कि हमको कैसा करना चाहिए, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव assumption हो जाएगी. और इसको as we practice, as we move in this practicing phase, आप ये देखेंगे कि ये once you have determined, कुछ ऐसी भी होती है स्टेटमेंट्स आएंगी जिसमें ये पैराडाइम्स ही नजर आ रहे होंगे. लेकिन जनरली क्या होगा कि आपके सामने कॉजल assumptions आ जाएंगी, प्रिस्क्रिप्टिव आ जाएंगी, और पैराडाइमेटिक आपको इन्फर करनी पड़ती है. वो आमतौर पे इम्प्लाइड होती हैं, दे आर नॉट एक्सप्रेस. So this is these are the three kinds of assumptions we'll be working with. If there are any questions, if you have any questions about these things, all these, any of these, मुझे प्लीज बताइएगा, हम इसको क्लियर कर लेते हैं इंशाल्लाह. Paradigmatic assumptions, prescriptive assumptions, causal assumptions. जी, any questions? क्वेश्चन ना होने की वजह दो हो सकती है जी. एक तो ये कि बिल्कुल समझ में नहीं आया तो मैं पूछूं क्या, और दूसरा ये कि समझ में आ गया है. तो कुछ थोड़ा सा बता दें कि हैव यू आर यू विद मी? एक तीसरी वजह भी है जी, वो ये वो कि भी सुनाई. हो सकता है कोई शर्मिंदगी के बायस ना पूछ रहा हो, क्योंकि वो उसने अभी अभी ज्वाइन किया है और उसको कोई पता ही नहीं कि क्या बात हो रही थी. ओके ओके, तो हम इसको दोबारा से शुरू कर लेते हैं जी. मेरा ख्याल नहीं है नहीं, ये जो है, हमने इस शर्मिंदगी को इस क्लास से खत्म करने की कोशिश करनी है जी. हाँ जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई डू आई से दिस? बिकॉज ये वाली जो शर्मिंदगी है ना जी, इट इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन लर्निंग. आई बिलीव दैट इट शुड बी ओवरकम. इंशाल्लाह इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस तरह का कभी भी प्रॉब्लम ना हो कि अगर आप लेट आए हैं, लेट हो ही सकता है जी इंसान, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जाए कि हम टाइम पे आ जाएं, बिकॉज वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम. 1 घंटे का सेशन है. और अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे ना जी, तो इसको गुजरते हुए टाइम को पता भी नहीं चलेगा.
जनरली एक प्रैक्टिस सेशन जो है दैट टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, तो मैं इस वजह से चाहूंगा कि अगर हम आते साथ ही इसको शुरू कर लें सो दैट नो वी कैन डू सम वर्क। जी, यूं है। If you can, sorry, sir, मैं बीच में interrupt कर रही हूँ, but if you can explain the causal assumption again, if या आई possible. एक्सप्लेन ऑल थ्री जी। ठीक है Okay. जी, मैं इन सारों को ले लेते हैं। हम अब जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो ये है कि हमने स्टेटमेंट्स को एज केसेस इन पॉइंट देखना है, स्टेटमेंट्स को कुछ सिनेरियोज को, और उसमें से हमने अजम्पशंस निकालनी है। इट बिकम्स easier if we know that there are three kinds of things to look for. Number one, something that expresses a cause and effect relationship between something mentioned or implied. कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर, मैं अगर ये कह रहा हूँ, मेरी एक स्टेटमेंट है कि शाम को आकर बर्फ वाला पानी पीने की वजह से आज सुबह जब मैं उठा तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम हुआ हुआ था। I was feeling a very stuffy nose and something like that. तो इस स्टेटमेंट में मैंने कोई अजम्पशन नहीं बयान की, आपको ऐसे लग रहा है जैसे मैंने फैक्ट्स बयान किए हैं सिर्फ। ठीक है जी, हालांकि इसमें एक अजम्पशन है, ये जो मेरा स्टफी नोज है ये उसकी वजह से हुआ है। जब भी आपको किसी जगह पे ये महसूस हो कि बोलने वाला या लिखने वाला ये बता रहा है कि ये इस वजह से हुआ है, तो ये असल में उसने कॉज असाइन की है। जाहिर है कि जब दो चीजें होती हैं, आप एक काम करते हैं और आपके ख्याल में उसकी वजह से दूसरा काम करते हैं, तो ये नहीं होता कि ये बिल्कुल ऑब्वियस होता है, ये आपकी इन्फ्रेंस है कि एक चीज की वजह से दूसरी हो रही है। वो इन्फ्रेंस, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट इवन सजेस्टिंग दैट इट विल बी रॉन्ग, इट probably will be right most of the time, but at least we have to sort of uncover that. We have to bring it out. This is a causal assumption that due to icy water, uh, a person gets stuffy nose. Now this is a causal assumption. If A happens, B will happen. This is a causal assumption. मैंने ये भी अर्ज किया कि causal assumptions की एक खूबी ये होती है that they are predictive in nature. If you believe that a teacher, by keeping a strict control over the class, can maintain good discipline and affects good learning. So predictive in nature ये हो जाएगी that if you're a teacher and you try to maintain good control over the class, you will expect good results as well. ये इसमें प्रिडिक्टिव एलिमेंट हो जाता है कि अगर मेरी कोई कॉजल अजम्पशंस हैं तो मैं उनको प्रिडिक्टिव समझता हूँ कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो ये होगा। देखिए, जैसे ही मैंने कॉज असाइन कर दी एक काम के लिए, दूसरे काम को कॉज असाइन कर दी है, तो मैं असल में ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आइंदा ये वाली कॉज पूरी कर दूंगा तो वो अफेक्ट आएगा। राइट, सो दिस इज कॉजल अजम्पशन जी। ये आप में से अदीला आपने पूछा था जी, ये क्लियर होगी जी बात, कॉजल अजम्पशन? जी जी I'm sure, I'm not sure आपने पूछा था। I'm sorry, I didn't get the मैंने name. पूछा था रदीला। जी ठीक जी, फिर हो गया, तो thank you. you इट्स क्लियर है, ठीक है ना जी। कॉजल अच्छा अजम्पशन इज सिंपली अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जी जी सलमा, आप फरमाइए। आपने भी कहा कि ये जो कॉजल अजम्पशन है ये अकीदे की तरह होती है, हम्म हम्म तो सारी मोइशा अजम्पशंस, जी कॉजल अजम्पशन तो नहीं नहीं, सारी अजम्पशंस सारी असल में बिलीफ की तरह होती हैं। हाँ जी, बिलीफ की तरह होती हैं। हम की तरह होती बिलीफ है। है, हाँ की तरह होती हैं। यानी हम ठीक है, जो वर्ड है ना बिलीफ, इसकी एक रिलीजियस कॉनोटेशन बना दी है हमने, वरना ये रिलीजियस कॉनोटेशन बहुत ज्यादा पीछे चले जाए तो ये फेथ की थी। यानी जो फेथ जिसको कहा जाता था उसको हम बिलीव, हम आम जुबान में कहते हैं ना, आई जी बिलीव, यू नो। अभी हम थोड़ा लेट हो गए, तो आई वाज, आई बिलीव इट वाज बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक, यू नो। दिस दिस इज, ये इसकी कॉनोटेशन चेंज होगी। अब ये कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है। बिलीफ का मतलब ये है कि मैं एक चीज के बारे में ये सॉर्ट ऑफ बिलीफ रखता हूं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये अजम्पशन होती है बेसिकली। हम ठीक है इसको सर। लूजली बिलीफ बना लेते हैं, बट बहुत सारे बिलीफ भी अजम्पशंस होते हैं।
मिसाल के तौर पर पैराडाइमेटिक अजम्पशन में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी कि जो हमारे बिलीफ हैं, ठीक है जी। बिलीफ से मुराद रिलीजियस बिलीफ नहीं, आप इसको यूं समझ लें कि ये हम अनचेक्ड होते हैं। जिस तरह रिलीजियस बिलीफ आमतौर पे अनचेक्ड रहते हैं, हम इस पे ज्यादा गौर नहीं करते कि इनको देखें कि क्या इसकी बेसिस है, किस तरह, क्यों मैं मानता हूं जो मानता हूं। बिल्कुल इसी तरह से अजम्पशंस भी हम इनके ऊपर गौर नहीं किया होता। ये हमारे एक्सपीरियंसेस के नतीजे में बनती हैं, ये हमारी एक्सपोजर्स के नतीजे में बनती है, लेकिन गौर नहीं किया होता। वी जस्ट टेक देम फॉर ग्रांटेड। मिसाल के तौर पर मैं इसकी आपको एक और मिसाल देता हूँ कि बिलअमूम हमारा टीचिंग, हमारा पेरेंटिंग स्टाइल वही होता है जो हमारे पेरेंट्स का हमारे साथ होता है। ये हमारी अजम्पशन है कि वो स्टाइल ठीक है, ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा ये अजम्पशन गलत है या सही है। हमारी टीचिंग का स्टाइल आमतौर पर वो होता है जिसमें हमें टीच किया गया है। So this is how we form our assumptions, and what we are trying to do in this field of critical reflection is to become aware of those assumptions, number one, and then to check those assumptions. यही चीज है, यानी यूं नहीं कि कोई नई चीज आएगी इसमें, उन्हीं को सिर्फ अनकवर करेंगे हम और फिर उसके बाद उनको चेक करेंगे। प्रिस्क्रिप्टिव assumptions ये होती हैं कि जिसमें आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोई चीज। प्रिस्क्राइब करने का मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू लाइक दिस, यू नीड टू, यू नो, अ गुड स्पीकर शुड अपीयर कॉन्फिडेंट। दिस इज अ प्रिस्क्रिप्टिव assumption, राइट? ओके, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि अगर आपने प्रिस्क्रिप्टिव assumption अनकवर कर ली है किसी की, तो असल में अब आप थोड़ा सा उससे पूछेंगे तो पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली वुड हैपन। अगर आपको प्रिस्क्रिप्टिव assumption पता चल गई है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन if he appears to be confident, you know, people will be more attentive, they'll listen more carefully. Okay, so from here you can actually derive a causal assumption as well. When a speaker appears to be confident, he gets more attention and engagement of the audience. ये देखें, अब causal assumption बन गई। तो ये हम थोड़ा सा उस पर डीप जाते हैं और ये निकलती आती हैं। पैराडाइमेटिक assumptions वो होती हैं जो हमारे ओवरऑल पर्सपेक्टिव को बयान करती हैं, ठीक है जी। और इनको आमतौर पे ना शुड से बयान किया जाएगा, ना रिलेशनशिप्स में बयान किया जाएगा आमतौर पे। अगर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप आ गया तो वो कॉजल है, अगर प्रिस्क्रिप्शन आ गई है तो वो प्रिस्क्रिप्टिव है। और अगर मिसाल के तौर पर ये कहा गया है कि आई बिलीव, आई बिलीव दैट लर्निंग इज, अब इसको पूरा करें, लर्निंग इज अबाउट transforming other people's constructions. This is a paradigm. Is है, ठीक है जी। इसको एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की तरह बयान किया जाता है। इंसान बुनियादी तौर पर नेक है, ये पैराडाइम है। इंसान बुनियादी तौर पर बेसब्रा है, ये पैराडाइम है, ठीक है जी। यानी हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है इंसान के बारे में, अब हम उसके अंदर रहकर गौर करते हैं। ये जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, जो मिसाल के तौर पर मुसलमानों का एक पैराडाइम है और ये बड़ा क्लियरली स्टेटेड है। अब ये देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको बड़ी गौर से सुनिएगा। आई एम नॉट सेइंग, ये अजम्पशन है, पैराडाइमेटिक अजम्पशन है, लेकिन ये इसकी मिसाल है कि जरूरी नहीं है कि हर अजम्पशन जो है वो अजम्पशन की तरह वीक समझी जाए। मुसलमान ये कहता है कि कुरान मजीद के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो नहीं मानी जाएगी। एवरीथिंग which will be accepted as a truth should not be against the Quran, should be in consonance with the Quran, not necessarily, but should not be against the Quran. ये उनका पैराडाइम है, ठीक है जी। ये जो ये मैंने जिस तरह बयान किया, ये प्रिस्क्रिप्शन लग रही है, लेकिन ये है पैराडाइम। यानी द कुरान इज द क्राइटेरियन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये है ना असल में जो पैराडाइम है। तो उसके नतीजे में ये सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तीन चीजें हैं जी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रिस्क्रिप्शंस एंड ओवरऑल व्यू पॉइंट्स। अगर इसकी हायरार्की बनाई जाए,
हायरार्की बनाई जाए तो सबसे नीचे आता है पैराडाइम, ठीक है जी। यानी ये समझ लें कि वो बेस है आपके गौर करने की, आपकी जिंदगी गुजारने की, आपके फैसले करने की, आपके एक्शंस लेने की, आपके सेटअप्स बनाने की, ये पैराडाइम है, ठीक है जी। इसके ऊपर उस पैराडाइम से निकलने वाली कुछ प्रिस्क्रिप्शंस आ जाएंगी, और ये जो कॉजल है ये बिल्कुल वो आखिरी चीज है जिधर, जिसके बारे में आप कह सकते हैं वेयर द टायर हिट्स द रोड, वेयर इट बिकम्स, वेयर योर थियरी बिकम्स, you bring your theory into practice. So this is the hierarchy, okay? If you have still any further questions, please do not hesitate. आपने ये बताना है जी, और put it on me, because I can tell you these concepts can be a little difficult to understand, so no problem at all. Don't hesitate at all. Let me know if you still have any problems. जी, हम चलें जी आगे, इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, आप इसको इस पे गौर भी करते हैं। और मैंने अभी आपके साथ एक राइट अप शेयर करना है जो कि विच रिलेट्स टू दिस पॉइंट, ठीक है जी। इसको मैंने द 3 काइंड्स ऑफ अजम्पशंस के नाम से एक छोटे से राइट अप में डाल दिया है, बल्कि कॉपी पेस्ट ही है, वो स्टीफन ब्रुकफील्ड की एक किताब से लिया हुआ है, becoming critically reflective teachers. So just look at it, maybe you'll get better ideas from there. But for now, let us just consider the following statement and think about it. थोड़ी देर के लिए take a, how much time do we have? Well, we have about 15 minutes. Take 2 minutes. आज हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं टाइम. 2 minutes of silence. इस स्टेटमेंट पे गौर करना है आपने. 2 मिनट आपको मिलेंगे. सिर्फ गौर करके देखिए कि इसके अंदर से आप क्या चीजें निकाल सकते हैं. कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव, पैराडाइमेटिक, fill in the blanks. I am so sorry, I could not see. Somebody raised their hand. G, please. I think this is prescriptive because of the need to. Right. This is a prescriptive assumption. The whole statement is a prescriptive assumption. That is absolutely right. Now, think about it. This statement, consider this statement as somebody's point of view. What you need to consider is, what does this person thinks about children? What is his concept about children? What is his concept about the learning of children? इससे आपको, this is how you try to discover paradigmatic assumptions, because they are never stated. Generally, they are not stated. You have to infer from these statements. ये आदमी जो ये कह रहा है, people need to model the behavior which they wish to see in their children. What does he think? How do children learn? इसमें सॉरी बात नहीं करें भाई, go ahead, go ahead, भाई. इट्स ओके. मैं तो मैं एक और assumption करने लगा था. I think it would be that children lead by modeling, like children do what they see. Right. Children actually learn. They start integrating what they are seeing in their environment. The way people work, the way people talk, the way people behave, the way they react. This will be picked up by children, and they'll start integrating them into their own behaviors. So this is how children, the first learning of children. And now, if you have stated this, the next step would be that you can check it. कि क्या ये बात ठीक है? इसके ऊपर बड़ी अच्छी डिस्कशन हो सकती है. ये खुद किन चीजों पे बेस्ड है? Can there be any exceptions to it? Do people learn like that? Is it restricted to children? Can elders also learn like that? And then it has another assumption as well, that people can model that. So a person can control his behavior, right? You get my point? If I were to say that
if I were to believe that a person cannot change what one is, you can't change what you are since the beginning. Whatever you are today, you will remain that way. That means you can't model anything for anyone else. You are what you are. Either you are modeling it and you'll keep modeling it, or you won't, because you can't change yourself. So there is another assumption here that by being conscious, we can change our behaviors, our proclivities towards certain actions. हम इसमें पैराडायमेट्रिक assumption भी derive कर सकते हैं, जैसे people's good behaviors are generally followed by their kids, और इसमें हम causal assumptions भी ले सकते हैं. If people adopt a good behavior, their children will follow like that, something like that. Right, exactly. बिल्कुल ठीक है जी. So I also ये जो agree आप with I also हाँ जी. agree with Jamil. This is the point which मेरे ज़हन में आ रहा था कि इसमें एक तो पैराडाइम उन्होंने बना लिया खुद से, इस लिहाज से पैराडिग्मेटिक का assumption है, और फिर ये कि जब इसमें जो वर्ड यूज हो रहा है नीड टू, इससे जाहिर होता है कि ये प्रिस्क्रिप्टिव है, और एक ये कि इससे एक कॉज एंड इफेक्ट का एक सेंस आ रहा है कि अगर ये करेंगे तो फिर जाएगा, तो कॉज एंड इफेक्ट की वजह से ये कॉजल सेंस. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है. सो इफ यू टेक वन आउट, अगर आप एक तक पहुंच गए तो समझ लें कि उसके नतीजे में कुछ चीजें इन्फर भी की जा सकती हैं कि जो आदमी ये मानता है वो क्या मानेगा. मिसाल के तौर पर if you believe this, that people need to model the behaviors which they wish to see in children. So I mean, would you say that this person would say, would obviously ascribe to the idea that if you are a pleasant person, your children are likely to be pleasant? This would be a causal assumption, है ना जी. यही फैसल साहब जो फरमा रहे हैं, तो एक चीज को निकालेंगे दूसरी भी निकल सकती है उससे, which makes it a little easier. तो हमें एक तक पहुंचना है जरूरी. जैसे पाकिस्तान में लोग जनरली समझते हैं कि जब तक हमारे लीडर सही नहीं होंगे तो हम भी सही नहीं होंगे. Right, absolutely. Yeah. They don't want to bring any change themselves. They want it to be imposed, so that they should develop. Right, and another causal assumption can be that whatever the chemistry of the nation, an appropriate leader would be assigned to that nation. ठीक है ना जी. यानी अगर आपकी कौम ही ऐसी है तो फिर लीडर क्योंकि कौम से निकलना है, और खास तौर पे it goes very logically for the democratic setups कि अगर हमारी कौम में मिसाल के तौर पर फरिश्ते पाए जाते हैं तो फिर लीडर भी फरिश्ता ही होगा. काफी कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, तो जनरली तो सही नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि ये assumption इधर से भी हाँ बिल्कुल सही. इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर रेडिकल चेंजेस जो है वो ऊपर से आती हैं. तो अगर लीडर सही आ, जैसे मिलिट्री का दौर आ जाए तो थोड़ा सा सुकून आ जाता है, तो जैसे वो तो इसी तरह जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो वो कुछ और सिचुएशन है. बिल्कुल ठीक है जी. अच्छा जी, लेट्स टेक दिस अप. आई वुड trying to uncover our assumptions and check their validity and accuracy is a challenging skill and can only be learned after practice. This is important. I wanted to highlight this point. Our assumptions, when I say trying to uncover our assumptions, it will probably be the most difficult thing for me that I can check my assumptions because I take them for granted. But you can help me uncover my assumptions. और इस वजह से मेरी ख्वाहिश होगी जी that हम इसके ऊपर जो ये सेशन चल रहे हैं ना, इसमें मैं आपसे आफ्टर सम सेशंस इंशाल्लाह 1-2 सेशंस 3-4 और भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आई वुड लाइक टू गेट सम फीडबैक. फीडबैक का मतलब वो नहीं है कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा.
No, I would like to get some slightly more detailed feedback because that will help me understand whether my assumptions are correct or not. And I will share that with you. ठीक है जी. यानी आप मुझे जी. सॉरी, आप उसके बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। हम सब लोग बहुत बड़े जजमेंटल हैं दूसरों के राइट. बारे में। नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है. हम उसको पॉजिटिवली यूज कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉजिटिवली तो हमें करना ही है, लेकिन एक चीज और भी है. वो ये है कि इसमें जो मेरी अजम्पशन है ना जी, जो मेरी अजम्पशन है, असल में मुझे उनको चेक करना है कि कितनी ठीक है. एंड आई आई नीड टू कीप रिव्यूइंग दैट. बिकॉज यू सी, मुझसे लोग ये कहते हैं जिस वक्त के ये बड़ा कामयाब सेशन हो गया है, एंड एवरी न्यू सेशन इज बेसिकली, it basically means new people. And people can't be generalized. मिसाल के तौर पर एक assumption मेरी ये है, seriously एक assumption मेरी ये है, that people will find it easier to communicate in smaller groups, especially when they're new in class. And you know, you might be surprised, but once it was completely wrong, because people are people. You can't generalize them. एक क्लास में जब मैंने ये फीडबैक फॉर्म लिया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप पूरे ग्रुप की प्लेनरी मीटिंग्स ही किया करें, छोटे ग्रुप्स में ना किया करें, बिकॉज वी फाइंड इट डिफिकल्ट. आई मीन गुफ्तगू रुक जाती है आफ्टर सम टाइम. हालांकि ये पिछले कुछ कितने 10 बरस से कर रहा हूं मैं, और कभी ये नहीं आया था फीडबैक, बट ये भी आ जाता है. एंड दैट इज बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग, and a group cannot be generalized for every other group. We can say average, but there are certain standard deviation differences as well. So सबसे पहली चीज तो ये कि अपनी assumptions को निकालना, to be able to uncover my own assumptions, is a very difficult process and can only be done after a lot of practice. Therefore, it is highly advisable to practice critical reflection on others' opinions and statements to which we are not personally and emotionally attached. I'm going to, wind up today's session with a statement that I will be sharing with you. आपने इस statement को लेना है और इसके बारे में थोड़ा सा गौर करके आना है जी. हम नेक्स्ट सेशन में इसको तफसील से ले लेंगे. I want every one of you to please note down this statement. Everyone wants their children to become responsible adults. For this purpose, we need to promote desirable behaviors among them. To promote desirable behaviors among children, we should reward them for their good behaviors and punish them for their bad behaviors. ये स्टेटमेंट है. आपने इसके अंदर से कोशिश करनी है कि अलग अलग करके निकाल दें कॉजल, प्रिस्क्रिप्टिव, पैराडाइमेटिक अजम्पशंस. ठीक है जी. ये हमारी एक्सरसाइज है जी पहली. इसके बाद हमने अब थोड़ा सा सिनेरियोज को लेंगे नेक्स्ट सेशन से हम, एंड फाइनली वील कम बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, कि हमारी जो क्लास की नॉर्म्स हैं उनके पीछे क्या क्या assumptions हैं, because that is something which relates to our opinion. We need to, just जो देने वाला होगा ना वो ओपिनियन, वो भी पूरी तरह से अभी ये नहीं जानता, मतलब कॉन्शियस नहीं होगा. मैं आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग कॉन्शियस भी होंगे, लेकिन कुछ हम में से कॉन्शियस नहीं होंगे कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये अपनी अपनी ऑन गोइंग ट्रेडिशन के अंदर की वजह से कर रहे हैं, या हम ये समझते हैं कि इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग assumptions हैं which hold the test of time. तो इसको आपने अपने लिए एक छोटी सी असाइनमेंट समझ लीजिए, and I think we will inshallah start from this point in the next class. Any questions ji? Anything that you would like to share? We have a couple of minutes. अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. सर मुझे कैसे हैं पूछना था खलील? कि अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए आपकी तबीयत ठीक है सर? पहले तो सर माजरत किसी वक्त हो सकता है कि क्लास मिस हो जाए, लेकिन मैं वो यूट्यूब वीडियोस में देख लेता हूँ. बाज़ बात कई दफा मेरी अपनी किसी क्लास की वजह से या कमिटमेंट की वजह से कोई नहीं नहीं मिस हो, सर, बड़ी बिल्कुल माजरत. ठीक. लेकिन मैंने वीडियोस देख रहा जी हूँ साथ साथ, मतलब मैं क्लास के साथ हूँ पूरी तरह, मतलब चल रही है सारी चीजें, मैं साथ साथ उसको फॉलो कर रहा हूँ. जरूर सर एक चीज जरूर पूछनी है कि इनकी, यानी ये जो हम सीख रहे हैं अभी ये सारा कुछ, इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अगर आप थोड़ा सा वाज़ेह कर दें कि इसको फाइनली हम कहाँ यूज करेंगे बाद में अपनी लर्निंग के हवाले से. मतलब असल में मेरी राय ये है
मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये राय भी आप समझ सकते हैं कि बायस है हर चीज में, इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। जी ये इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि मैं जब कभी गुफ्तगू कर रहा हूँ और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो गया, मैं जब कॉन्वर्सेशंस के गाइडलाइंस पढ़ाता हूँ ना जी, तो उसमें वन ऑफ द बेसिक गाइडलाइन जिसके ऊपर बड़ी बात करते हैं हम, बहुत तफसील से जाते हैं उसके अंदर, डीप पर जाते हैं, वो गाइडलाइन ये है कि वेन एवर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जी try to ask questions that will uncover the other person's assumptions, हाँ because that is from where the difference of opinion can really be resolved. हम्म, अदरवाइज आप सिर्फ आर्गुमेंट देते रहेंगे, वो अपनी पैराडाइमेटिक assumption पे खड़ा है, उसको पता ही नहीं क्या है, ठीक है जी, कुछ नहीं एक्सीलेंट पता, एक्सीलेंट ठीक है जी। तो आपने कोई फैसला करना है, आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी सेटअप को गौर कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर एक घर को देखकर आप ये अजम्पशन निकालने की कोशिश करें कि ये बंदा जो है ये बेसिकली क्या समझता है, यानी व्हाट इज हिज बेसिक आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आप, इफ यू आर एन आर्किटेक्ट, मैं इस चीज को जानता नहीं हूँ, therefore I would not be able to comment directly on that, but the thing is that in everything in life, everything where हम ये you would like to take a क्राइटेरिया आ considered जाएगा decision। जिसको हम अप्लाई करें। बिल्कुल जी सही। जी, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि ये क्राइटेरिया हमें मिल जाएगा, इसके बाद फिर हम किसी भी हाँ हाँ, ये जो बल्कि मैं आपको सिनेरियोज दूंगा, ये बेसिकली एवरीडे लाइफ से रिलेटेड ही दूंगा, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। बिल्कुल अभी देखिए हमने बात शुरू कहाँ से की है, वो यहाँ से की है कि हम रेकमेंड कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रेकमेंड, दीज शुड बी द नॉर्म्स ऑफ द क्लास, ठीक है, हमारी इस क्लास के ये नॉर्म्स होने चाहिए। To be able to consider whether these norms are, they hold strong grounds, whether we should implement them or not, we can adopt this method. लेकिन सर इसमें फिर हर बंदे की यानी एनालिसिस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो फिर उसमें कंसेंसस कैसे होगा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। मैं अर्ज करता हूँ जी, देखिए अजम्पशन जब आप निकाल लेते हैं ना, तो वो अजम्पशन या तो ठीक निकालेंगे या गलत निकालेंगे। मिसाल के तौर पर एक आइडिया ये सामने आ गया है कि ये जो बंदा कह रहा है जी कि अपने बच्चों के अंदर अगर आप कोई बिहेवियर पैदा करना चाहते हैं तो उसको मॉडल करें। जी ये जो बंदा कह रहा है, क्या ये बात ठीक है कि बच्चे इस तरह सीखते हैं? यानी इसको समझाया जा सकता है, लोगों को बताया जा सकता है कि लोग इस तरह सीखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा बताने का तरीका ये होता है कि आप बच्चे को जिस माहौल में भी रखेंगे ना, जिस माहौल में भी, यानी यू माइट बी सरप्राइज दैट अ चाइल्ड हु इज 1 year old living in America would be very fluent in English, or 2 years old, because it's no hard work. Actually, learning the language is no hard work. If you're living in a particular environment and you're exposed to a particular setup, this comes naturally to you. ठीक है जी। मैं जब जाता हूँ ना जी, जब दुबई वगैरह में, तो उधर बड़ा मजा आता है, छोटे छोटे से बच्चे अरबी बोल रहे होते हैं, तो कितनी अजीब सी बात नहीं है। यानी इमेजिन करें कि मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा जो है वो, सारे हम यहाँ पे उर्दू बोल रहे हैं, अचानक अरबी बोलने लगते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है जी। वी एक्चुअली चिल्ड्रन लर्न थ्रू थ्रू सच इंटीग्रेशन, कि हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको वी ट्राई टू एम्यूलेट। ये तो हमें नजर आ रहा है ना। जी तो जी इस बात को अगर ले लिया जाए कि क्या इस तरह से बच्चे सीखते हैं, तो फिर पेरेंट्स को ये समझाने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कम से कम रियलाइज करने में कि बिल्कुल असल में बच्चे, खास तौर पे बिल्कुल यंगर एज के जो बच्चे हैं, 2 साल 2.5 साल तक के, वो तो उनका हर बिहेवियर असल में मेरा बिहेवियर है। बिल्कुल। इसको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अगर समझना है, ठीक है जी। लेकिन सर फिर आप इसको अच्छा, किस तरह देखते हैं कि, सॉरी आपकी बात कट होगी, कि अगर एक ही घर में 2-3 बच्चे हैं, वो उनके डिफरेंट होता है, आप समझ रहे हैं, उनका कैरेक्टर जो है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें ये कैसे? लेकिन बिल्कुल ठीक है जी। यानी देखें, कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, मैं जो चीज कह रहा हूँ, कुछ चीजें डिफरेंट नहीं होंगी। वो एक ही घर में बच्चे जो पैदा हुए हैं, वो सारे के सारे एक ही लैंग्वेज बोल रहे होंगे, सही सही ये तो होगा ना। यानी अब देखें, चीजें डिफरेंट कौन सी होंगी और कौन सी नहीं होंगी, इनको जी डिस्टिंक्ट करना है, ठीक है सही जी। यानी मिसाल के तौर पर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होंगी। अंडरस्टैंडिंग असल में हर एक की इंडिविजुअल होती है, बिल्कुल सही। अंडरस्टैंडिंग एक नहीं हो सकती। लेकिन मिसाल के तौर पर ये नहीं होगा कि एक बच्चा जो है वो उसी माहौल में पला बड़ा हो, लेकिन वो कोई और ही जुबान बोलने लग पड़े, ये बिल्कुल नहीं सही। होगा, ठीक है जी।
ऐसा नहीं होगा कि वो मिसाल के तौर पर उसकी जो बिहेवियर्स हैं, मिसाल वो बिहेवियर्स विच विच आर ऑटोनॉमिक किस्म के बिहेवियर्स जो होते हैं, लैंग्वेज टाइप बिहेवियर, वो असल में एक नई चीज निकाल लें। लेकिन उसका जब जब एक्सपोजर बढ़ेगा, you see he gets himself exposed to a bigger environment, तो अब ज्यादा डिफरेंसेस नुमाया होने शुरू हो जाएंगे, अब उनकी लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस नजर आने लग पड़ेंगे। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इसको अप्रिशिएट करना है कि what we learn, actually it is not the teacher who sort of who materializes learning. It is the teacher is only assisting. A student actually constructs individually. यहाँ पर अगर आप 6 लोग 7 लोग बैठे हैं, तो every individual is going to have his own individual mental construction of what is going on. बिल्कुल सही। अब वो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। असल में ये है जो स्पिलिंग मॉडल है ना जी, स्पिलिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, वो ये है कि टीचर इस जगह पे खड़ा है, उसने लर्निंग देनी है, बस वो फैसिलिटेट कर रहा असल। लेकिन ये मॉडल है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ एजुकेशन, वो ये कहता है, ऑफ लर्निंग, वो ये कहता है कि टीचर ने असल में कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी आप अगर इसमें इंटरेक्टिव होंगे, बातचीत करेंगे, तो पता चलेगा कि खलील की कंस्ट्रक्शन क्या बनी है। अब मैं उसके बारे में कमेंट कर सकता हूँ, मैंने इधर पढ़ाया और मैं चला गया, ठीक है जी। इसके बाद अगर 6 लोग बैठे तो 6 के 6 डिफरेंट बात करेंगे कि क्या पढ़ाया, सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर मेरे सामने ये बात होगी तो मैं एक को ठीक करूंगा, दूसरे को करूंगा। ये वजह है कि जिसको मैं कहता हूँ कि इसको बिल्कुल कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी लर्निंग को लाजमन शेयर करना चाहिए। मैंने क्या सीखा, इसलिए उनकी लर्निंग मैंने नहीं देनी, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैंने तो असल में वो कैटलिस्ट प्रोवाइड करने हैं कि जिससे शायद लर्निंग हो जाए।